Hello everybody, how are you? Today we are going to share some experiences or maybe some good things about the corona. Hello everybody, today we are sharing some experiences in the current situation where everybody is in fear of coronavirus. As you know, corona has been defined very largely by everybody. But today, because of timing, we will cover only 5 type of immunity, how we can uh, fight with this present situation. As you know, there are some symptoms: fever, cough, shortness of breath, viral and respiratory system, breathing difficulties, infection, and cause of pneumonia. Severe acute respiratory syndrome are also seen some serious cases, and kidney failure is in the last when there is no control. So directly we are coming to the point that the only one fight is there against corona, that is immune. How you can remain immune? The first type of immunity is called herd immunity, and that is found in the nature and also in the environment where we are living. This immunity is basically this immunity is basically community राजा immunity वो and जो उस वाली for दीवार है ना good उसके बॉर्डर पे ऐसे मार दे वहां सारा ऐसे पड़ा है बिस्कुट सारा एक बार बॉर्डर पे and infection. Hello, पहले ये please कर दे don't disturb. Hello, herd immunity happens when so many people in a community become immune to an infectious disease. That is stop the disease from spread. So how we can be self-immune against this herd immunity? Because this is almost 60% found in the community wherever. And fortunately, we are lucky that India has more immunity than any universal country, because we have six different climates, and we take it every time. After 2 months, we become immune and non-immune also. So here in India, this thing, fever, you can say influenza and nausea is a common thing. And after 20 or maybe 7 days, everybody become immune and antibodies are developed into the body. So here at holistic level, we are able to immune the body immediately. In the previous lecture, I told you that Nabi balance is the best one to immune you instantly. Whenever you feel, whatever you feel, only the thing is that you should be empty stomach, maybe more than 2 hours to 5 hours. You lay down on the bed and balance your Nabi, nothing else. You will feel rejuvenated and your all balance will be rejuvenated, because as I told you, herd immunity is from the outside of the, because environment is playing with us. And how you can compromise with the environment, or how you can synchronize with the environment, that is your balancing of Nabi. Balancing of Nabi, I will also send you the balancing Nabi balancing file also again if you require. But in the last chapter we have learned it at large. Now the best thing, whenever you feel that you have some influenza, or you are feeling something uh, wrong in the body, you are not feeling healthy, you are feeling some pain in the body, so what you should do, take haldi and 1 spoon of cow ghee, you mix up, you put it on the you can say gas, just for 2 to 3 minutes, just change the color of the haldi. आप उसको थोड़ा सा ब्राउन करिए, और उसमें आप
बेसन डाल दीजिए, थोड़ा बेसन को भूनिए, जब ये बेसन थोड़ा भून जाए उसमें दूध बने, तो इसको हम आम भाषा में लापसी भी बोलते हैं और ये बेसन का हलवा भी बोला जाता है। ये बनाइए, थोड़ा हल्का सा, इसको सख्त मत होने दीजिए, और आधा चम्मच दूध में डालकर हल्दी और दूध के साथ इसको ले लीजिए, और उसके बाद आप कम से कम 10-15 मिनट या आधा घंटे के लिए अपने आप को बिस्तर में ले जाइए, कपड़ा डाल लीजिए और पसीना खूब लीजिए। तो जो हल्दी का दूध है या जो बेसन का हलवा है, दिन 15 to 20 मिनट्स में अपने आप को आपको इम्यून कर सकता है। इसके अलावा आप घर में क्या कीजिए, दालचीनी लगभग आधी मात्रा में, सौंफ लगभग आधी मात्रा में, काली मिर्च लगभग चौथाई मात्रा में, और तुलसी का काढ़ा या तुलसी के कम से कम आप ये ले लिए 15, 20, 25 पत्ते ले लीजिए और इसका एक काढ़ा तैयार कर लीजिए। यानी कि एक गिलास में से चौथाई पानी रहने तक आप ये काढ़ा तैयार करिए और इसको अपने फ्रिज में बोतल में रख लीजिए या किसी भी कप में रख लीजिए, गिलास में रख लीजिए। इसमें जब भी आपको फील होता है ऐसा सिम्टम जो कि कोरोना के बारे में बोला जाता है या बोला जाता है कि कोरोना ऐसे आता है, या जब आपको कोई भी बॉडी में किसी तरह का कोई भी डिस्ट्रेस लगे या बॉडी ठीक अनुभव नहीं फील कर रहा हो, तो आप इस काढ़े की कम से कम 2 या 4 चम्मच पी लीजिए। हो सकता है तो इसको गर्म पानी में डाल के पी लीजिए। तो आपको 5 या 10 मिनट के अंदर ही अंदर आप यू विल फील दैट आई एम फीलिंग बेटर, और मुझे जो सिम्टम आए थे वो चले गए। तो ये है हार्ड इम्यूनिटी, यानी कि आप 60% तक अपने आप को इम्यून इंस्टेंटली कर सकते हो। आपका बॉडी अपने आप में इम्यून है, वो बॉडी जानता है कि मुझे इन्वायरमेंट से कैसे लड़ना है, या मुझ पर जो वायरल अटैक आ रहा है, जो वायरस अटैक आया है, या किसी तरह का मेरे ऊपर कोई भी बैक्टीरियल अटैक आ रहा है, तो बॉडी जानता है। इसके अलावा एक आप इंस्टेंट काम ये भी कर सकते हैं, जब आपको जुकाम की फीलिंग आए या आपको नोजिया लगे या आपको लगे कि कुछ थोड़ा बहुत म्यूकस बॉडी मेरे नाक में इकट्ठा हो रहा है, तो आप इंस्टेंटली जाइए, थोड़ा गर्म पानी अपनी हथेली में हो, केवल हथेली में लीजिए, उसको नाक से पीने की कोशिश करिए, जिसको हम योग में नेति भी बोलते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि इंस्टेंट नेति है। किसी भी टाइम आप थोड़ा सा नाक से पानी पीने की कोशिश जब करेंगे तो आपको इमीडिएटली इसमें फायदा मिलेगा, और इसी को हम हार्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। अब हम चलते हैं, दूसरी तरह की इम्यूनिटी है कि जो हमारे पेट में है। अब आप एक बात समझ के चलिए कि जिसका पेट सही है उसका सब कुछ सही है, और जो पेट है इवन वो सांसारिक रोगों का कारण भी वही है। जो आपके साथ अपना परिवार लगा, आपके जितने विकार हैं, या आप ये समझ लीजिए कि पेट के कारण ही हम इस संसार में दुखी हैं। तो अब एक इसके बारे में एक बात बहुत अच्छी तरह कही जाती है कि जो लीकी गट्स है, यानी कि जो आपका पेट है उसमें से म्यूकोसा, वो बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि जो रस बनते हैं खाने के बाद, जो भी आप बॉडी में डालते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी जाती है, उसके माध्यम से आपको अटैक भी जाता है। तो जितना भी आपको इन्फेक्शन या बैक्टीरिया जाते हैं वो थ्रू फूड के जाते हैं। तो गलती से हम जो भी खाते हैं, और वहाँ पर एक इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, और इस इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप का रोल यही है कि आपने जो भी खाया उसमें से जो भी बॉडी ने रस तैयार करना है वो बैक्टीरिया फ्री हो, उसमें कोई भी इन्फेक्शन बनाने वाली चीजें ना हो, उसमें कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बनाने वाली चीजें ना हो, यानी कि आपके बॉडी में कोई भी ऐसी चीज ना जाए जो कि आपको अटैक कर सकती है, जो आपको डिसइम्यून कर सकती है। तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है? एक छोटी सी अच्छी आदत बना लीजिए कि जब भी आप खाना खाते हैं उसके बाद यदि आप आधा कप या 1 कप या 1 गिलास बिल्कुल गर्म उबलता हुआ पानी, उसमें आप सौंफ डाल सकते हैं, उसमें आप जीरा डाल सकते हैं, उसमें आप
इलायची डाल सकते हैं, उसको आप किसी भी तरह से, काला नमक डाल सकते हैं, आप टेस्टी बनाने के लिए उसमें शहद भी डाल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप टेस्टी बनाने के लिए खाने के बाद मैं तो ये सलाह दूंगा कि कम से कम आधा कप या 1 कप पानी जरूर पीने की आदत डालें, जिससे जो आपका लीकी गट है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और जो ये हमारी म्यूकोसल इम्यूनोलॉजी है, यानी कि जो इंटेस्टाइन है, आपके परिवार का, आपके इम्यून सिस्टम का या आपके शरीर का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। बोला जाता है 21 मीटर की आंत है दोनों मिलाकर। तो ये अंतड़ियों के अंदर जो भी हमारी फिजिकल फंक्शन है, अगर आप उसको आप कोऑपरेट करते हैं गर्म पानी के साथ, यानी कि पेट को थोड़ा खाने के बाद आप सहयोग करते हैं, तो उससे आपको बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है। आप अपने आप में इम्यून हो सकते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद, खाना पचाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हमें हमारा खाना ठीक उसी प्रकार से इंटेस्टाइन में, स्टोमक में उबलता है जिस प्रकार हम गैस में उबालते हैं। तो यदि हम गर्म पानी उसके साथ, ठंडा पानी मैं कभी नहीं बोलूंगा, और दूसरा पानी भी हम बोलते हैं नेचर में कि खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, परंतु यदि आपको किसी तरह गैस्ट्रिक प्रॉब्लम फील होती है, आपको खाने के बाद लगता है कि खाना हजम नहीं हो रहा है, किसी तरह का कोई भी ऐसा सिम्टम आता है जिससे आप महसूस करते हैं कि मेरा खाना अच्छी तरह हजम नहीं हुआ है, तो उस केस में आप अपने खाने के साथ गर्म पानी का स्वभाव बना लें। खाना खाया उसके बाद जब आप कुल्ला करते हैं तो कुल्ला भी आप गर्म पानी से कर सकते हैं और उसी कुल्ले को अंदर भी ले जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी आदत है। उसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहना है, तो एक काम आप अच्छी तरह से, तो म्यूकोसल इम्यूनिटी है, आप देखेंगे कि आपकी नाभि जब सुरक्षित रहेगी, तो नाभि को इम्यून करने के लिए या नाभि की ताकत देने के लिए आप कभी, एक हमारा सिद्धांत है कि सिग्नेचर थ्योरी कहती है कि परमात्मा ने जितना दुनिया में बाहर बनाया है उसको उठा करके अंदर रख दिया है। इसीलिए ये मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे अलग है और सबसे गजब है। तो इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए नेचर ने नाभि के साथ अपना एक, जिसको कहते हैं सूक्ष्म कंट्रोल, बनाया हुआ है। आप देखेंगे मशरूम की जो शक्ल है आपकी नाभि से मिलती जुलती है, यानी कि आपके, अगर हम मशरूम पे रिसर्च करते हैं तो हम पाएंगे कि लगभग 33 तरह के उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। मशरूम कैंसर को लड़ने में काबिल है, मशरूम आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में काबिल है, मशरूम एंटीबैक्टीरियल है, मशरूम एंटीवायरल है, मशरूम एंटी वायरस है। तो बहुत सारी चीजें मशरूम में पाई जाती है, जिसको हम 33 कोटि यानी कि 33 प्रकार के देवी देवता का नाम लिया जाता है। वो मशरूम के अंदर वही 33 गुण विद्यमान है। और मशरूम की जो आकृति है या मशरूम की शक्ल है वो हूबहू हमारी नाभि से मिलती जुलती है। तो उसका फायदा उठाने के लिए हम क्या करेंगे कि मशरूम को ले लीजिए। अगर मशरूम का पाउडर, हेलो, मशरूम का पाउडर मिल हाँ जी। जाता है तो उसको आप यूज कीजिए। उसमें मशरूम का सूप बनाने के लिए आप उसमें काली मिर्च डालिए, हल्दी डालिए और मशरूम का सूप बना करके पीजिए, तो आपको बहुत अच्छा है। मशरूम को आप चाय में डाल के पी सकते हैं अगर आपके पास मशरूम का पाउडर अवेलेबल है। मशरूम को आप पानी में मिला के पी सकते हैं क्योंकि ये सोल्यूबल है। और मशरूम को आप किसी भी चीज में, आप अपने आटे में, यानी कि जो आप घर में आटा खाते हैं उसमें अगर आप 10%, यानी कि 10 किलो में 100 ग्राम मशरूम भी डाल देंगे तो आपका आटा ही इम्यून हो जाता है। देखा गया है कि ये जो जो मैं म्यूकोसल इम्यूनिटी की बात करता हूँ, ये ज्यादातर डायबिटीज से रिलेटेड है कि ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज कम हो जाता है। तो इसके 5 तरह के IG1 टाइप है, 2 टाइप है, 3 टाइप है, 4 टाइप है। यही 3 तरह की तो आपके शुगर को बनाते हैं।
तो आप जाने अनजाने जो शुगर का भी आप इलाज मशरूम के साथ काली मिर्च और हल्दी का सूप बना करके कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा ये जो जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये आपके जो हमारा निघट्टू आयुर्वेदिक ग्रंथ है, निघंटू। तो निघंटू में ये लहसुन, अदरक और प्याज को दुनिया के सबसे बड़े, मतलब जो हम इसमें पानी में वो डालते हैं, क्लोरीन डालते हैं, उसका जो साइड इफेक्ट है, तो ये क्लीनर हैं। लहसुन हमारे, जो आप अगर लहसुन की आकृति देखोगे तो हड्डियों से मिलता जुलता है। लहसुन अपने आप में हृदय से मिलता जुलता है। लहसुन का जो आकृति है वो आपके फेफड़ों से मिलती जुलती है। तो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी को बनाने के लिए लहसुन एक बहुत बड़ा मतलब एंटीवायरल है। इसका फायदा हम उठा सकते हैं। आप इसको अगर आप एक प्रयोग करके दे सकते हैं कि गंदे से गंदा पानी ले, उसमें आप लहसुन, अदरक और प्याज का मतलब खूब अच्छी तरह से तैयार किया हुआ काढ़ा या इनका पानी डालेंगे तो वो पानी की सफाई कर देता है। जिस तरह से आपका आरओ वाटर करता है, उसी तरह से आप लहसुन, अदरक और प्याज का एक रस बना करके अपने घर में रख लीजिए। जब भी आपको किसी तरह के सिम्पटम मिलते हैं, जब भी आपको लगता है कि हमें कोई किसी तरह का वायरल आ रहा है या हमारा पेट खराब हो रहा है या हमारे ऊपर कोई बैक्टीरियल अटैक आ रहा है, आपको जुकाम आता है, सर्दी आती है, जिस भी तरह से जो भी सिम्पटम कोरोना के बताए गए, अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे और ये लहसुन, अदरक और प्याज का पानी आप तुरंत यूज करेंगे, तो मैं तो एज इंटीग्रेटेड मेडिसिन में मैं आपको एक सलाह भी दूंगा कि कभी कभी साल में 1 या 2 बार अगर आप लहसुन का कहीं से आपको तेल मिलता है या लहसुन का निकाला हुआ रस मिलता है, तो उसको आप 1 या 2 बूंद अगर अपने नथनों में डालोगे, अपने अपने दांत में डालोगे, तो आप बहुत अच्छी तरह से इम्यून हो सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी जो सुगंध है वो थोड़ी अजीब होती है, परंतु अदरक और प्याज के मिलने से इसी को, अदरक को कई तरह हमें बोला भी जाता है कि जो लहसुन है वो जो है वो जो मांस वगैरह खाने वाले लोग खाते हैं, ये जो आम जो जो बंदे भगवान को ज़्यादा मानते हैं, जो जो नेचर प्रिय हैं, वो लहसुन को लेने में थोड़ा वो थोड़ा थोड़ा सा घबराते हैं, या कई धर्मों में तो बोला गया है इसको यूज भी नहीं करें। तो उस समय में आप अदरक प्याज का यूज भी कर सकते हैं। वैसे ये तीनों चीजें हाँ, मतलब इसके हिसाब से बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहें तो अपने पानी में इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आती है आपकी प्राण इम्यूनिटी। प्राण इम्यूनिटी, अब देखिए, प्राण हमारे अगर योग की दृष्टि से देखा जाए तो प्राण सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये आप देखेंगे भी कि कोरोना में अल्टीमेटली जो बोला गया है, एक डायरेक्शन दी गई है कि जो भी बंदे मरते हैं, चाहे वो किसी बीमारी से मर रहे हैं, किसी दूसरी तीसरी या अपनी पुरानी बीमारियों से मर रहे हैं, सबको कोरोना पीड़ित या कोरोना से मृत्यु बताई जाती है। इसका कारण यही है कि अंत में तो प्राण ही निकलता है। अल्टीमेटली मनुष्य के शरीर से प्राण ही छोड़ता है, तभी हम उसको मृत घोषित करते हैं। अल्टीमेटली फेफड़ों में ही इन्फेक्शन आता है, प्राण रुकेगा, और उसके बाद आपके हृदय से जो जाती है वो तो मृत्यु के 24 घंटे बाद भी जाती है। तो इसी तरह कई बार कई कई केसेस में देखा जाता है कि दोबारा से जीवित हो जाता है। तो ये जो प्राणा इम्यूनिटी है, प्राण इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए मैं आपको बहुत इजी से इजी एक बहुत ही अच्छा सुदर्शन क्रिया, और उसकी वीडियो भी हम आपको भेज सकते हैं। अगर आप कहो तो मैं आपके सामने, सिर्फ अपने अंदर से आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकना है, क्योंकि ऑक्सीजन जब फोर्सिबली जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को फेंकेंगे और तो आपको
इसमें वीडियो लग सकती है। हम आपको वो क्रिया बताते हैं जिसमें 5 सूक्ष्म क्रियाएं एक में ही इंक्लूडेड है। इसको टेक्निकल भाषा में सुदर्शन क्रिया बोला जाता है। पर इसमें आपको सिर्फ सांस को बाहर फेंकना है, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप सांस अपने आप अंदर आएगा। इसके 2 स्वरूप हैं। एक, आप मुख से सांस बाहर फेंकते हैं। जब आप सामने से करते हैं, मुट्ठियाँ बंद कर लीजिए, इस क्रिया को आप 50 बार दोहराइए। इसी तरह जब आप नाक से सांस फेंकना है तो ऊपर से अपने हाथों को नीचे की ओर लाइए। कोशिश यही है कि आप अपने सांस प्राण बाहर फेंकिए। और इसको सावधानी पूर्वक इसलिए किए कि अपनी शरीर की स्थिति अनुसार आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं और बहुत जोर से। अब जोर से करने के लिए आपको तो इस तरह से आप इसकी 3 प्रक्रियाएं हैं और तीनों को आप अपनी सुविधा अनुसार कवर कर सकते हैं। तो रोगी को अपने से इस क्रिया के द्वारा आप अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को उठा सकते हैं। और इसमें कई बार हमने देखा है कि जैसे ऑक्सीजन लेवल मापा जाता है उंगल के साथ, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जो कईयों में तो जो स्ट्रोक वैल्यू है शरीर की, हृदय की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो लोगों में बहुत 10-20 साल से लगभग 50-55 या 45 तक भी रहती थी। परंतु इस क्रिया के बाद वो लोग 72-75 तक टच करने लग जाते हैं। तो आपने जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस करती है, और ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आपका नेचुरल तरीके का एक किस्म से वेंटिलेशन है। इसको आप प्राणा वेंटिलेशन नाम दे सकते हैं और इसको मान भी सकते हैं कि प्राण की शक्ति इससे तुरंत बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें इसको अपनी जिंदगी में लगभग, मैं तो यही सलाह दूंगा, आप बीमार हैं या नहीं हैं, आप पे कोरोना अटैक आया है या नहीं आया, परंतु आप अपने आप को इम्यून रखने के लिए कितनी ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी आप इस एक्सरसाइज में नहीं लेंगे। हाँ, इसमें सावधानी ज़रूर है कि जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो धीरे से करें, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा इसको स्लो 5 या 10 दिन थोड़ा स्लो, जैसे थोड़ी धीमी गति से करें और धीरे धीरे उस गति को बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इम्यून हैं, आप बच्चे हैं और जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं है, आप जब आप महसूस करते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, बाहर जाइए और अपने आप को जंपिंग करना शुरू करिए। जैसे पंजों के बाहर, पब्बों के बाहर हम जंप करते हैं, वो जंपिंग शुरू करिए। आप इमीडिएटली पाएंगे कि आप बहुत अच्छा उसमें इम्यून कर रहे हैं और बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी उठ रही है। सुबह शाम पंजों के बाद जैसे हम बचपन में घुटते, अपना बचपन याद करिए, जैसे आप बचपन में उछलते थे, कूदते थे तो लंग्स भरते थे, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत मैक्सिमम जाती थी। परंतु अब जो जो आप खटिया पे आ गए हैं या कुर्सी पे आ गए हैं, आप बैठने लग गए हैं, आप टीवी के आगे अपना समय वेट करते हैं, तो बॉडी में कार्बन बढ़ता है। इसको अवॉइड कीजिए, बाहर जाइए, सैर कीजिए। किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप तो बोला जाता है सैर करो सैर करो, तो उसके पीछे यही है कि ताकि आपके शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन, अब अगर आप मानेंगे तो एक दिन में हम 10,000 लीटर ऑक्सीजन जो है ना इनटेक इनपुट करते हैं, और एक समय में हमारे लंग्स में 4.5-5 लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए, परंतु हम 2 या 2.5 लीटर, ये ज़्यादा इनपुट आजकल चल रही है, तो उससे हम इम्यून नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्राण शक्ति सबसे बड़ी है, ऑक्सीजन सबसे बड़ा एलिमेंट है। 70% जो है, सॉरी, जो आपका शरीर है वो प्राण शक्ति से ही चलता है। हम तो अब कभी आपको बताएंगे कि शरीर में ही 120-60 तो प्राण हैं, 60 तरह के प्राण आपके शरीर को चलाते हैं।
और प्राण को हनुमान जी माना जाता है। यदि आपका प्रोटेक्टर ही वीक है, यदि हनुमान जी को सांस लेने की तकलीफ है, तो आपको क्या सुरक्षा देगा वो? क्या सर? सीरोटिन, डोपामाइन, जितने भी आपके इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन्स हैं, सब ऑक्सीजन से हैं, सब माइंड से चलते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को प्राण इम्यून बनाइए। जितना बड़ा आपका प्राण इम्यून होगा उतना बड़ा सही होगा। ओवर। विशेष ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके आसपास अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। सारा दिन केवल अपने वजन का 10% मानी के 600 ग्राम, 60 किलो है तो 600 ग्राम तक आप सलाद खाइए, और वो भी दिन में 3 टाइम खाइए, आप खाना छोड़ दीजिए। तीसरे दिन आप धीरे धीरे दोनों चीज़ों पे, जूस पे भी रह सकते हैं, बीच में आप सलाद खा सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे दलिया, खिचड़ी, जो भी इजी खाना है वो आप ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि फूड में आपके लिए अदरक और लहसुन और प्याज, हमारी सभ्यताओं में चलता है कि यदि बुखार हो तो अपनी कांच के अंदर दबा लो प्याज को, तो बुखार चला जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हमें मिलने को मिलती है, आप उनका यूज किए, देखिए उसका क्या बेनिफिट है। उसके अलावा मैंने बताया है कि बेसन का हलवा फूड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो भी आपको इजीली, आपकी रसोई में अगर आप झांकेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो एंटी कोरोना हैं, जैसे कि काली मिर्च है। अब मैं एक बात यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, काली मिर्च मर्द के लिए, आवाज, काली मिर्च मर्द के लिए एक इम्यून फैक्टर है। जो व्यक्ति प्रोस्टेट पे है, जिसके टेस्टिज हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ा गुण है। व्यक्ति के लिए काली मिर्च और छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको बोला जाता है, ये दो ऐसे इम्यून हैं। आप जिस भी समय दूध के साथ ले लो, आप अपनी सब्जी में डाल लो, अपने मसालों में डालो, जहां मर्जी इनको यूज करो, परंतु आपको उसी टाइम इम्यून करेंगे। तो इसी तरह से औरत के लिए हल्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए, डी के लिए, और बहुत सारे औरत के गुणों को डेवलप करने के लिए हल्दी एक बहुत बड़ी इम्यून है। औरत के लिए हल्दी एक किस्म से माँ का काम करती है। अगर आप कभी लोग हल्दी का पौधा देखोगे, हल्दी का कभी जाओगे खेत में, तो आप हल्दी को उखाड़ के देखना, और उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसको देखना, आपको मिलेगा कि जैसे उसकी जड़ में ही औरत समाई हुई है। खूब ऐसे लगेगा जैसे औरत की पिक्चर बनी हुई है। तो औरत के लिए हल्दी, अगर 10 या 12 साल से, समझदार जो औरतें हैं वो अपनी बच्चियों को 10 या 12 साल की उम्र से 1 चम्मच हल्दी घी में थोड़ा सा भून करके उसको दूध मिला करके, इसको गोल्डन मिल्क भी बोला जाता है बहुत समय में, और कच्ची हल्दी, आजकल सर्दियों में कच्ची हल्दी अब आने लगी है, आप 1 उंगल गांठ, सिर्फ आधी, इतनी सी हल्दी की गांठ अगर आप 1 गिलास दूध में कूट करके अच्छी तरह से उबाल करके बच्चियों को देते हो, तो बच्ची अपने आप ही इम्यून होती है। इनके बहुत सारे, जितना मेंस्ट्रुअल सिस्टम है, औरत का जो भी परव्यू है, वो हल्दी अपने आप में ठीक कर सकती है। हल्दी औरत के लिए अमृत है। इसी तरह तुलसी है, तुलसी को काली माता का, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है तुलसी का बहुत बड़ा है। ये 14वां रत्न बोला जाता है। तो तुलसी का पत्ता रेगुलर चाय में, आप पानी में, और मैं तो सजेशन करूंगा कि जहां आप नीम, मीठी नीम का पत्ता डालते हैं, उसकी जगह अगर आप खाने में तुलसी भी डालेंगे तो आपका खाना भी एंटीबैक्टीरियल बन जाता है, और डाइजेशन के लिए बैटरी
तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से फूड इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही रसोई में पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय बैठा हुआ है। आप ये समझिए कि आपका जो किचन है वो अपने आप में एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, और इसी की नैनो टेक्नोलॉजी बाहर लेकर के दूसरे जितने भी सिस्टम डेवलप हुए हैं यहीं से हुए हैं। आप एनासिन अगर लेना चाहते हैं, उससे बढ़िया है कि आप काली मिर्च ले लीजिए। अगर आप we were talking about food immunity, और अब हम थे कि जो विटामिन सी और डी डेफिशिएंसी जो है वो कोरोना में बहुत बड़ा रोल है। तो आपके घर में जो दही है वो विटामिन सी का बड़ा अच्छा विकल्प है। और यदि आप दही में जो पान में कच्चा चूना मिलता है, कत्था जिसको बोलते हैं, तो एक एक गेहूं के दाने के बराबर सिर्फ दही में सुबह सुबह आप मिला लीजिए और उसको फिर दही को खाइए। तो ये आपका जो विटामिन सी डेफिशिएंसी है, कहा जाता है कि कोरोना में विटामिन सी का बहुत महत्व है, तो जो विटामिन सी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में ये फार्मूला बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा जब भी आप पानी पिए, तो पानी पीने से पहले आप कोई भी घर में आपके चांदी का जो भी अच्छा गहना है या कुछ है, उसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। अपनी गैस पे पकड़ के, चिमटे से पकड़ के या किसी भी सहायता से उसको एक बार तपा लीजिए, यानी कि बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। और फिर उसको आपका जो पानी का गिलास में अगर उसमें आप डुबोगे तो ठंडा होने तक उसको अंदर रखिए। तो जो आपके पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं, और ये विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए और एक फार्मूला माना गया है कि जो कोरोना में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। यदि पानी कुनकुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप एक वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे दूध है, आपको, आप अगर दूध पीने के शौकीन हैं तो दूध गर्म कीजिए, हल्दी डालिए और उसमें कोई सोने का गहना जो आपके पास हो, सॉलिड हो, उसको खूब गर्म करके एक बार दूध में ठंडा कीजिए। तो आपको इससे बहुत ही अच्छा विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद विटामिन सी और डी डेफिशिएंट होते हैं, और इन्हीं से हमें बहुत सारी ज्यादातर रोग इन्हीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं के पाए जाते हैं। तो आप विटामिन सी और डी डेफिशिएंसी को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल डेफिशिएंसी पे। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ये जो मार्केट बनाई गई है, हमें डराया गया है। और डर एक बहुत बड़ी विधा है। डर एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे अंदर पांचों विकार पैदा होते हैं। अगर आप डरते नहीं हो तो निडर व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें वैसे ही नहीं फटकती हैं। तो अपने आप को निडर बनाने के लिए आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि नेट पे जाइए और नेट के ऊपर आपको मिलेगा हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से हम डाउन जाते हैं। तो क्वांटम साइंस मानती है कि जितना सूक्ष्म है उतना ही वंडरफुल है। तो यदि आप अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, बहुत सारी डिसीजन लेने में आप इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि आप अंदर से हिले हुए रहते हैं, आप अंदर से डरते रहते हैं आपके अंदर। और हमारा तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य ही ऐसा है कि 40 के बाद बच्चों का जब टाइम आता है तो हम, जो व्यक्ति है वो चारों तरफ से डरता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उससे पहले अपनी फैमिली को बनाने के लिए डरता है। तो ये जो डर नाम की चीज है, अगर आप इससे थोड़ा सा भी, देखिए मेडिटेशन से बड़ा तो कोई दुनिया में ट्रीटमेंट है नहीं। यदि आप 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं, परंतु मेडिटेशन कब करेंगे आप? मेडिटेशन करने के लिए मन को एकांत
एकत्रित करना पड़ता है, मन में जो दुविधाएं चल रही है उनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है, उसका कोई साधन है नहीं। तो अगर आप अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं दुनिया में डिसीजन मेकिंग में एक एक सॉलिड हो जाऊं, तो उसके लिए आप लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, खाली कुछ नहीं करना आपने। वैसे तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से भी म्यूजिक है, परंतु माना गया है कि म्यूजिक जो है दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी है। म्यूजिक से बड़ा इस दुनिया में हीलर कोई नहीं है, जो कि आपको इंटरनली हील करता है, आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है, और आपको जो जो दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, या जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको हम गॉड बोलते हैं, तो उसके रास्ते पे ले जाता है। वैसे जो लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से, और वो 10 मिनट या 15 मिनट आप खाली ये मोबाइल का यूज करिए। वैसे तो मोबाइल बहुत घातक है, परंतु आप इसी टेक्नोलॉजी का यूज करिए, और लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुबह शाम जब भी आपको समय है, या आप सोते वक्त सिर्फ लगा करके उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ धुन सुनिए उसकी। तो लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक बहुत हैं, अवेलेबल हैं। योग निद्रा के भी हैं। यदि आप नींद लेते, कहा गया है निद्रा महासुखम, निद्रा से बड़ा कोई सुख इस दुनिया में नहीं है। तो यदि आप नींद की लेने की कला सीख लें, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि शाम को 7 बजे खाना खा लीजिए और 9 से 11 के बीच में निद्रा ले लीजिए, तो आपको 22 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। आपके पास दुनिया से 3 गुना, लगभग 3 गुना, 8 घंटे की हम ड्यूटी देते हैं, लगभग 22 घंटे आपको मिल जाएंगे दुनिया से लड़ने के लिए और दुनिया में काम करने के लिए। तो 9 से 11 निद्रा ये नेचुरल है, हमारे अंदर एक बायोवाच है। इसका कभी आगे तत्वों के साथ जोड़ के हम कभी आने वाले समय में कभी वर्णन करेंगे। और उस बायोवाच का, वैसे मैं आपको दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ कि किस तरह से बायोवाच बॉडी में आप देखेंगे कि हमारे शरीर में पंच महाभूत का क्या रोल है, और पानी तत्व कहाँ बैठा है, आकाश तत्व कहाँ बैठा है, पृथ्वी तत्व कहाँ बैठा है, वायु तत्व कहाँ बैठा है। अब ये जो डिस्टरबेंस है, आजकल जो कोरोना चल रहा है, ये वायु तत्व की डिस्टरबेंस है। यदि आप इसके पीछे देखेंगे पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व में क्या आपको कौन सा म्यूजिक लेना है, पृथ्वी तत्व किससे म्यूजिक से जुड़ा होगा। अब आप धरती की जो वाइब्रेशंस हैं, धरती की जो आवाज हैं, जो अंत, आजकल सब कुछ नेट पे मिलता है, उससे जुड़िए, और आपको ये पालनहार का काम करेगा। पृथ्वी माँ का काम करती है, और ये वायु तत्व के लिए सपोर्टर का काम करती है, आपको उससे सपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह से इसका कंट्रोलर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में आप आजकल सूर्य की जो है ना, सूर्य की वाइब्रेशंस की आवाजें ली हुई हैं, या गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जाप जब आप करोगे तो उससे अग्नि तत्व प्रदीप्त होगा, तो आपके वायु तत्व को कंट्रोल कर लेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए कि ये यहाँ पे अगर हम इन तीनों को देखते हैं, तो जो वायु तत्व है वो वायु है, और जो अग्नि तत्व है वो पित्त है, और पृथ्वी तत्व कफ है। आप इनको डायरेक्शन देखेंगे तो ये अपने आप में नेचर ने हमें अपने आप चीजें दे रखी। अब मैं उसमें कहने लगा था कि आप जाइए, बाहर जाइए, अच्छी तरह से पाँव को घिसाइए घास के ऊपर, तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि वो अग्नि है, वो पृथ्वी तत्व है। तो घास पे चलना अपने आप में, हाँ, जब आप जुकाम हुआ है, आप सुबह जाके अगर घास पे चलेंगे तो उस टाइम ओस होती है, उसकी बजाय आप ऐसा करिए दोपहर को घास पे चलिए, तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। उसी तरह से अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व कहाँ से लेंगे, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से अग्नि तत्व मिलेगा। धूप में स्नान कीजिए, धूप में बैठिए, धूप सेकिए। आजकल तो मीठी मीठी धूप होती है, तो सुबह सुबह की धूप आपको बहुत अच्छा विटामिन डी देगी। और इस तरह से ये आप इन तीनों में आप ये देखिए, ये सर्कल जो बनता है, आप अपने आप को इम्यून कर सकते हैं। ये आपके सामने इतनी बड़ी साइंस रखी है मैंने, कि एक तत्व को दूसरा तत्व कैसे कंट्रोल करता है, कौन सा तत्व एक दूसरे का कंट्रोलर है, और कौन सा तत्व एक दूसरे की सपोर्ट करता है। तो इसी को आप अगर थोड़ा सा काम ले, दिमाग से काम ले, तो आप, और दिन में
अब ये बोला जाता है पानी पियो पानी पियो, अब ये इसमें तो नॉर्मली नेट पे जाओगे आपको मिलेगा 8 से 10 गिलास पानी पियो दिन में, कम से कम 3-4 लीटर पानी पियो। मैं आपको एक बहुत बड़ी विधा दे रहा हूँ, आप अपने आप में शरीर से 80% रोगों को दूर कर सकते हैं। वो कैसे? कि सुबह उठ करके हो सके तो सुबह 3 से 5 के बीच में, अन्यथा जब आपको टाइम लगता है। शर्त यही है कि आपने पोटी जाने से पहले, बिफोर लेट्रिन यू हैव टू टेक 4 ग्लास ऑफ वाटर। उनमें से हो सकता है पहला पानी, सर्दी आ रही है, पहला आप थोड़ा कुनकुना लीजिए, थोड़ा गर्म लीजिए, बाकी गिलास नॉर्मल लीजिए। आपसे एक टाइम में नहीं पानी पिया जाता, एक एक करके 4 में लीजिए, पर शर्त यही है कि लेट्रिन से पहले वो 4 गिलास आपके शरीर में जाने चाहिए। पानी अपने आप में आपके माइंड का 97% मेक्स योर बॉडी, शरीर का लगभग लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है। और गर्म पानी, कोसा पानी, जैसे मैंने फूड इम्यूनिटी में बताया आपको कि खाने के बाद यदि आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपका फूड इम्यूनिटी बनती है, आपका खाना अच्छी तरह हजम होता है। उसी तरह यदि आप लेट्रिन से पहले 4 गिलास पानी पीते हैं तो नेचर में बोला जाता है कब्ज रोगों की नानी और गैस रोगों की माँ। डॉक्टर कहे हाँ, रोगी कहे ना। वो कहता है मुझे तो गैस है नहीं है, मुझे तो कब्ज होती नहीं है। अब कब्ज 120 तरह की है, ये एक ऐसा विषय है जो सारी दुनिया के रोगों को तोड़ सकता है। इसको कभी हम आने वाले फ्यूचर में सिर्फ कब्ज को ही लेंगे, क्योंकि ये विषय इतने बड़ा है, होलिस्टिक परव्यू इतना बड़ा है। यदि मैं एक विषय को पकड़ता हूँ तो उसमें ही मुझे घंटों लग जाते हैं, और यही कारण है कि हमें तो 1 घंटा दिया जाता है तो हम पीछे रह जाते हैं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। उसी तरह से कम एक्सरसाइज तो ना छोड़िए, हो सके तो 10 मिनट एड़ियों के बाहर जरूर चलना चाहिए। कभी भी किसी भी टाइम कहाँ पे भी, सोने से पहले, खाने से पहले, ये आपके घर में फर्श के ऊपर एड़ियों पे चलना है आपने। इसकी भी एक हमने वीडियो बनाई है, वो आपको दिखाते हैं कि इसमें आप एड़ियों के बाहर कैसे चलना चाहिए। तो इसमें आपकी ये वीडियो है, ये थोड़ा देख लीजिए, और इसमें मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा क्योंकि इसमें और वीडियो नहीं है। आप क्यों सर चलेंगे, यही है। ये देख लीजिए आप, इसमें आपको देखा है अभी, जहां मर्जी चलिए आप, दिन में 10 मिनट, ये आपको इम्यून करता है। माना जाता है कि एड़ियों के अंदर 72,000 नाड़ियां, तो 72,000 नाड़ियों से आप तो अब आप एड़ियों के बाहर चलेंगे तो 10 मिनट आप इसमें, अब माना जाता है कि ये एक योग का आपको मैंने, ये योग का अल्टरनेट आपको बताया है कि अगर आप 10 मिनट करते हैं तो ये 3 घंटे, 3.5 घंटे की योग के बराबर है। क्योंकि बेसिकली योग, एक्सरसाइज, जिम, जहां भी जाके आप नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं, और एडी में 72,000 नाड़ियों का कंट्रोल है। आप टेक्निकली या स्मार्टफुली, इसको कहते हैं स्मार्ट एक्सरसाइज, तो आप अपने आप को स्मार्ट कीजिए और टाइम भी बचाइए। 10 मिनट एडीओ पे चलने से आप इम्यून होंगे। जो 5 तरह की इम्यूनिटी मैंने अभी तक बताई हैं आपको, 5 टाइप ऑफ इम्यूनिटी कैन बी कवर्ड अंडर ओनली एडीओ पे चलना है। इसके अलावा आप जो है ना, मैं आपको एक बहुत स्मार्ट एक्सरसाइज और बताने जा रहा हूँ
जिसमें तौलिए से आपको नहाते वक्त अपने आप को इम्यून कर लेना। तो तौलिए में क्या करना, आपने कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने सांस को बाहर फेंकना है। ये जो 5 सूक्ष्म क्रियाएं हैं उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस क्रिया के द्वारा आप अपने आप को इम्यून कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को उठा सकते हैं। और इसमें कई बार हमने देखा है कि जैसे ऑक्सीजन लेवल मापा जाता है उंगल के साथ, तो मेरा ये अनुभव रहा है कि जो कईयों में तो जो स्ट्रोक वैल्यू है शरीर की, हृदय की जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, वो लोगों में बहुत बहुत 10-10, 20-20 साल से लगभग लगभग 50, 55 या 45 तक भी रहती थी। परंतु इस क्रिया के बाद वो लोग 72, 75 तक टच करने लग जाते हैं। तो आपने जब भी शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस करती है, और ये मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ये आपका नेचुरल तरीके का एक किस्म से वेंटिलेशन है। इसको आप प्राणा वेंटिलेशन नाम दे सकते हैं, और इसको मान भी सकते हैं कि प्राण की शक्ति इससे तुरंत बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें इसको अपनी जिंदगी में लगभग, मैं तो यही सलाह दूंगा, आप बीमार हैं या नहीं हैं, आप पे कोरोना अटैक आया है या नहीं आया, परंतु आप अपने आप को इम्यून रखने के लिए कितनी ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट भी आप इस एक्सरसाइज में नहीं लेंगे। हाँ, इसमें सावधानी जरूर है कि जिनको सांस की प्रॉब्लम है वो धीरे से करें, और जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो लोग थोड़ा इसको स्लो स्लो 5 या 10 दिन थोड़ा स्लो, जैसे थोड़ी थोड़ी धीमी गति से करें और धीरे धीरे उस गति को बढ़ाएं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप इम्यून हैं, आप बच्चे हैं और जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, कुछ नहीं है, आप जब आप महसूस करते हैं कि मुझे कुछ हो रहा है, बाहर जाइए और अपने आप को जंपिंग करना शुरू करिए। जैसे पंजों के बाहर, पब्बों के बाहर हम जंप करते हैं, वो जंपिंग शुरू करिए। आप इमीडिएटली पाएंगे कि आप बहुत अच्छा उसमें इम्यून कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इम्यूनिटी आपकी उठ रही है। सुबह शाम पंजों के बाद, जैसे हम बचपन में घुटते, अपना बचपन याद करिए, जैसे आप बचपन में उछलते थे, कूदते थे, तो लंग्स भरते थे, लंग्स में ऑक्सीजन बहुत मैक्सिमम जाती थी। परंतु अब जो जो आप खटिया पे आ गए हैं या कुर्सी पे आ गए हैं, आप बैठने लग गए हैं, आप टीवी के आगे अपना समय वेट करते हैं, तो बॉडी में कार्बन बढ़ता है। इसको अवॉइड कीजिए, बाहर जाइए, सैर कीजिए। किसी भी डॉक्टर के पास जब जाते हैं आप, तो बोला जाता है सैर करो सैर करो, तो उसके पीछे यही है कि ताकि आपके शरीर में मैक्सिमम ऑक्सीजन, अब अगर आप मानेंगे तो एक दिन में हम 10,000 लीटर ऑक्सीजन जो है ना इनटेक इनपुट करते हैं, और एक समय में हमारे लंग्स में 4.5-5 लीटर ऑक्सीजन होनी चाहिए, परंतु हम 2 या 2.5 लीटर, ये ज़्यादा इनपुट आजकल चल रही है, तो उससे हम इम्यून नहीं हो रहे हैं। देखिए, प्राण शक्ति सबसे बड़ी है, ऑक्सीजन सबसे बड़ा एलिमेंट है। 70% जो है, सॉरी, जो आपका शरीर है वो प्राण शक्ति से ही चलता है। हम तो अब कभी आपको बताएंगे कि शरीर में ही 120, 60 तो प्राण हैं, 60 तरह के प्राण आपके शरीर को चलाते हैं, और प्राण को हनुमान जी माना जाता है। यदि आपका प्रोटेक्टर ही वीक है, यदि हनुमान जी को सांस लेने की तकलीफ है, तो आपको क्या सुरक्षा देगा वो, क्या सर? सीरोटिन, डोपामाइन, जितने भी आपके इम्यूनिटी बूस्टर हार्मोन्स हैं, सब ऑक्सीजन से हैं, सब माइंड से चलते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, अपने आप को प्राण इम्यून बनाइए। जितना बड़ा आपका प्राण इम्यून होगा उतना बड़ा सही होगा। ओवर। विशेष ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो भी आपके आसपास अवेलेबल हैं वो आप ले सकते हैं। सारा दिन केवल अपने वजन का 10%, मानी के 600 ग्राम, 60 किलो है तो 600 ग्राम तक आप सलाद खाइए, और वो भी दिन में 3 टाइम खाइए, आप खाना छोड़ दीजिए। तीसरे दिन आप धीरे धीरे दोनों चीज़ों पे, जूस पे भी रह सकते हैं, बीच में आप सलाद खा सकते हैं, नहीं तो आप धीरे धीरे दलिया, खिचड़ी, जो भी इजी खाना है वो आप ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखिए,
कि फूड में आपके लिए अदरक और लहसुन और प्याज, हमारी सभ्यताओं में चलता है कि यदि बुखार हो तो अपनी कांच के अंदर दबा लो प्याज को, तो बुखार चला जाएगा। ऐसी ऐसी चीजें हमें मिलने को मिलती है, आप उनका यूज किए, देखिए उसका क्या बेनिफिट है। उसके अलावा मैंने बताया है कि बेसन का हलवा फूड इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा जो भी आपको इजीली आपकी रसोई में अगर आप झांकेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो एंटी कोरोना हैं, जैसे कि काली मिर्च है। अब मैं एक बात यहाँ पे आपको जानकारी के लिए बता दूं, काली मिर्च मर्द के लिए, आवाज, काली मिर्च मर्द के लिए एक इम्यून फैक्टर है। जो व्यक्ति प्रोस्टेट पे है, जिसके टेस्टिज हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ा गुण है। व्यक्ति के लिए काली मिर्च और छोटी इलायची, हरी इलायची जिसको बोला जाता है, ये दो ऐसे इम्यून हैं। आप जिस भी समय दूध के साथ ले लो, आप अपनी सब्जी में डालो, अपने मसालों में डालो, जहां मर्जी इनको यूज करो, परंतु आपको उसी टाइम इम्यून करेंगे। तो इसी तरह से औरत के लिए हल्दी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए, डी के लिए, और बहुत सारे औरत के गुणों को डेवलप करने के लिए हल्दी एक बहुत बड़ी इम्यून है। औरत के लिए हल्दी एक किस्म से माँ का काम करती है। अगर आप कभी लोग हल्दी का पौधा देखोगे, हल्दी का कभी जाओगे खेत में, तो आप हल्दी को उखाड़ के देखना, और उसकी जो इम्यून सिस्टम है उसको देखना, आपको मिलेगा कि जैसे उसकी जड़ में ही औरत समाई हुई है। खूब ऐसे लगेगा जैसे औरत की पिक्चर बनी हुई है। तो औरत के लिए हल्दी, अगर 10 या 12 साल से, समझदार जो औरतें हैं वो अपनी बच्चियों को 10 या 12 साल की उम्र से 1 चम्मच हल्दी घी में थोड़ा सा भून करके उसको दूध मिला करके, इसको गोल्डन मिल्क भी बोला जाता है बहुत समय में, और कच्ची हल्दी, आजकल सर्दियों में कच्ची हल्दी अब आने लगी है, आप 1 उंगल गांठ, सिर्फ आधी, इतनी सी हल्दी की गांठ अगर आप 1 गिलास दूध में कूट करके अच्छी तरह से उबाल करके बच्चियों को देते हो, तो बच्ची अपने आप ही इम्यून होती है। इनके बहुत सारे, जितना मेंस्ट्रुअल सिस्टम है, औरत का जो भी परव्यू है, वो हल्दी अपने आप में ठीक कर सकती है। हल्दी औरत के लिए अमृत है। इसी तरह तुलसी है, तुलसी को काली माता का, हमारे जो सांस्कृतिक महत्व है तुलसी का बहुत बड़ा है। ये 14वां रतन बोला जाता है। तो तुलसी का पत्ता रेगुलर चाय में, आप पानी में, और मैं तो सुजेशन करूंगा कि जहां आप नीम, मीठी नीम का पत्ता डालते हैं, उसकी जगह अगर आप खाने में तुलसी भी डालेंगे तो आपका खाना भी एंटीबैक्टीरियल बन जाता है, और डाइजेशन के लिए बैटरी। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से फूड इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ही रसोई में पूरा का पूरा स्वास्थ्य मंत्रालय बैठा हुआ है। आप ये समझिए कि आपका जो किचन है वो अपने आप में एक कंप्लीट हॉस्पिटल है, और इसी की नैनो टेक्नोलॉजी बाहर लेकर के दूसरे जितने भी सिस्टम डेवलप हुए हैं यहीं से हुए हैं। आप एनासिन अगर लेना चाहते हैं, उससे बढ़िया है कि आप काली मिर्च ले लीजिए। अगर आप we were talking about food immunity, और अब हम थे कि जो विटामिन सी और डी डेफिशिएंसी जो है
वो कोरोना में बहुत बड़ा रोल है। तो आपके घर में जो दही है वो विटामिन सी का बड़ा अच्छा विकल्प है। और यदि आप दही में जो पान में कच्चा चूना मिलता है, कत्था जिसको बोलते हैं, तो एक एक गेहूं के दाने के बराबर सिर्फ दही में सुबह सुबह आप मिला लीजिए और उसको फिर दही को खाइए। तो ये आपका जो विटामिन सी डेफिशिएंसी है, कहा जाता है कि कोरोना में विटामिन सी का बहुत महत्व है। तो जो विटामिन सी डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने में ये फार्मूला बहुत अच्छा काम कर सकता है। इसके अलावा जब भी आप पानी पिए तो पानी पीने से पहले आप कोई भी घर में आपके चांदी का जो भी अच्छा गहना है या कुछ है उसको अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। अपनी गैस पे पकड़ के, चिमटे से पकड़ के या किसी भी सहायता से उसको एक बार तपा लीजिए, यानी कि बहुत अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। और फिर उसको आपका जो पानी का गिलास में अगर उसमें आप डुबोगे तो ठंडा होने तक उसको अंदर रखिए। तो जो आपके पानी के अंदर जो मिनरल्स हैं और ये विटामिन सी डेफिशिएंसी के लिए और एक फार्मूला माना गया है कि जो कोरोना में एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। यदि पानी कुनकुना होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप एक वो कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे दूध है, आपको, आप अगर दूध पीने के शौकीन हैं तो दूध गर्म कीजिए, हल्दी डालिए और उसमें कोई सोने का गहना जो आपके पास हो, सॉलिड हो, उसको खूब गर्म करके एक बार दूध में ठंडा कीजिए। तो आपको इससे बहुत ही अच्छा विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद विटामिन सी और डी डेफिशिएंट होते हैं और इन्हीं से हमें बहुत सारी, ज्यादातर रोग इन्हीं इन्हीं से मिलते जुलते हैं, इन्हीं के पाए जाते हैं। तो आप विटामिन सी और डी डेफिशिएंसी को इस तरह से पूरा कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे हमारी लाइफस्टाइल डेफिशिएंसी पे। मैं यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में ये जो मार्केट बनाई गई है, हमें डराया गया है। और डर एक बहुत बड़ी विधा है। डर एक ऐसा ज्ञान है जिसके माध्यम से हमारे अंदर पांचों विकार पैदा होते हैं। अगर आप डरते नहीं हो तो निडर व्यक्ति के पास बहुत सारी चीजें वैसे ही नहीं फटकती हैं। तो अपने आप को निडर बनाने के लिए आपको मैं एक सुझाव दे रहा हूँ कि नेट पे जाइए और नेट के ऊपर आपको मिलेगा हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, हाई फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से हम डाउन जाते हैं। तो क्वांटम साइंस मानती है कि जितना सूक्ष्म है उतना ही वंडरफुल है। तो यदि आप अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहते हैं, बहुत सारी डिसीजन लेने में आप इसीलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि आप अंदर से हिले हुए रहते हैं, आप अंदर से डरते रहते हैं आपके अंदर। और हमारा तो सामाजिक परिप्रेक्ष्य ही ऐसा है कि 40 के बाद बच्चों का जब टाइम आता है तो हम, जो व्यक्ति है वो चारों तरफ से डरता है, उनकी एजुकेशन के लिए, उनको ठीक करने के लिए, उससे पहले अपनी फैमिली को बनाने के लिए डरता है। तो ये जो डर नाम की चीज है, अगर आप इससे थोड़ा सा भी, देखिए मेडिटेशन से बड़ा तो कोई दुनिया में ट्रीटमेंट है नहीं। यदि आप 10 मिनट मेडिटेशन करना चाहते हैं, परंतु मेडिटेशन कब करेंगे आप? मेडिटेशन करने के लिए मन को एकांत एकत्रित करना पड़ता है, मन में जो दुविधाएं चल रही है उनसे पीछा छुड़ाना पड़ता है, उसका कोई साधन है नहीं। तो अगर आप अपने आप को टेंशन फ्री रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं दुनिया में डिसीजन मेकिंग में एक एक सॉलिड हो जाऊं, तो उसके लिए आप लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक, खाली कुछ नहीं करना आपने। वैसे तो हर एक व्यक्ति के हिसाब से भी म्यूजिक है, परंतु माना गया है कि म्यूजिक जो है दुनिया की सबसे बड़ी थेरेपी है। म्यूजिक से बड़ा इस दुनिया में हीलर कोई नहीं है, जो कि आपको इंटरनली हील करता है, आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है और आपको जो जो दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है, या जो जिसको हम भगवान बोलते हैं, जिसको हम गॉड बोलते हैं, तो उसके रास्ते पे ले जाता है। वैसे जो लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक है, आप डाउनलोड कर लीजिए नेट से
और वो 10 मिनट या 15 मिनट आप खाली ये मोबाइल का यूज करिए। वैसे तो मोबाइल बहुत घातक है, परंतु आप इसी टेक्नोलॉजी का यूज करिए और लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक सुबह शाम जब भी आपको समय है, या आप सोते वक्त सिर्फ लगा करके उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ धुन सुनिए उसकी। तो लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक बहुत हैं, अवेलेबल हैं। योग निद्रा के भी हैं। यदि आप नींद लेते, कहा गया है निद्रा महासुखम, निद्रा से बड़ा कोई सुख इस दुनिया में नहीं है। तो यदि आप नींद की लेने की कला सीख लें, और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि शाम को 7 बजे खाना खा लीजिए और 9 से 11 के बीच में निद्रा ले लीजिए, तो आपको 22 घंटे सोने की जरूरत नहीं है। आपके पास दुनिया से 3 गुना, लगभग 3 गुना, 8 घंटे की हम ड्यूटी देते हैं, लगभग 22 घंटे आपको मिल जाएंगे दुनिया से लड़ने के लिए और दुनिया में काम करने के लिए। तो 9 से 11 निद्रा ये नेचुरल है, हमारे अंदर एक बायोवाच है। इसका कभी आगे तत्वों के साथ जोड़ के हम कभी आने वाले समय में कभी वर्णन करेंगे। और उस बायोवाच का वैसे मैं आपको दिखाने के लिए दिखा सकता हूँ कि किस तरह से बायोवाच बॉडी में आप देखेंगे कि हमारे शरीर में पंच महाभूत का क्या रोल है, और पानी तत्व कहाँ बैठा है, आकाश तत्व कहाँ बैठा है, पृथ्वी तत्व कहाँ बैठा है, वायु तत्व कहाँ बैठा है। अब ये जो डिस्टरबेंस है आजकल जो कोरोना चल रहा है, ये वायु तत्व की डिस्टरबेंस है। यदि आप इसके पीछे देखेंगे पृथ्वी तत्व, तो पृथ्वी तत्व में क्या आपको कौन सा म्यूजिक लेना है, पृथ्वी तत्व किससे म्यूजिक से जुड़ा होगा। अब आप धरती की जो वाइब्रेशंस हैं, धरती की जो आवाज हैं, जो आजकल सब कुछ नेट पे मिलता है, उससे जुड़िए और आपको ये पालनहार का काम करेगा। पृथ्वी माँ का काम करती है और ये वायु तत्व के लिए सपोर्टर का काम करती है, आपको उससे सपोर्ट मिल जाएगी। इसी तरह से इसका कंट्रोलर अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व में आप आजकल सूर्य की जो है ना, सूर्य की वाइब्रेशंस की आवाजें ली हुई हैं, या गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र का जाप जब आप करोगे तो उससे अग्नि तत्व प्रदीप्त होगा, तो आपके वायु तत्व को कंट्रोल कर लेगा। दूसरी तरफ से आप देखिए कि ये यहाँ पे अगर हम इन तीनों को देखते हैं, तो जो वायु तत्व है वो वायु है, और जो अग्नि तत्व है वो पित्त है, और पृथ्वी तत्व कफ है। आप इनको डायरेक्शन देखेंगे तो ये अपने आप में नेचर ने हमें अपने आप चीजें दे रखी। अब मैं उसमें कहने लगा था कि आप जाइए, बाहर जाइए, अच्छी तरह से पाँव को घिसाइए घास के ऊपर, तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि वो अग्नि है, वो पृथ्वी तत्व है। तो पृथ्वी घास पे चलना अपने आप में, हाँ, जब आप जुकाम हुआ है, आप सुबह जाके अगर घास पे चलेंगे तो उस टाइम ओस होती है, उसकी बजाय आप ऐसा करिए दोपहर को घास पे चलिए, तो आपको इम्यूनिटी मिलेगी। उसी तरह से अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व कहाँ से लेंगे, गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से अग्नि तत्व मिलेगा। धूप में स्नान कीजिए, धूप में बैठिए, धूप सेकिए। आजकल तो मीठी मीठी धूप होती है, तो सुबह सुबह की धूप आपको बहुत अच्छा विटामिन डी देगी। और इस तरह से ये आप इन तीनों में आप ये देखिए, ये सर्कल जो बनता है, आप अपने आप को इम्यून कर सकते हैं। ये आपके सामने इतनी बड़ी साइंस रखी है मैंने कि एक तत्व को दूसरा तत्व कैसे कंट्रोल करता है, कौन सा तत्व एक दूसरे का कंट्रोलर है और कौन सा तत्व एक दूसरे की सपोर्ट करता है। तो इसी को आप अगर थोड़ा सा काम ले, दिमाग से काम ले, तो आप, और दिन में, अब ये बोला जाता है पानी पियो पानी पियो, अब ये इसमें तो नॉर्मली नेट पे जाओगे आपको मिलेगा 8 से 10 गिलास पानी पियो, दिन में कम से कम 3-4 लीटर पानी पियो। मैं आपको एक बहुत बड़ी विधा दे रहा हूँ, आप अपने आप में शरीर से 80% रोगों को दूर कर सकते हैं। वो कैसे, कि सुबह उठ करके हो सके तो सुबह 3 से 5 के बीच में, अन्यथा जब आपको टाइम लगता है। शर्त यही है कि आपने पोटी जाने से पहले, बिफोर लेट्रिन यू हैव टू टेक 4 ग्लास ऑफ वाटर। उनमें से हो सकता है पहला पानी, सर्दी आ रही है, पहला आप थोड़ा कुनकुना लीजिए, थोड़ा गर्म लीजिए, बाकी गिलास नॉर्मल लीजिए। आपसे एक टाइम में नहीं पानी पिया जाता, एक एक करके 4 में लीजिए, पर शर्त यही है कि लेट्रिन से पहले वो 4 गिलास आपके शरीर में जाने चाहिए। पानी अपने आप में आपके माइंड का
97% मेक्स योर बॉडी। शरीर का लगभग 70% हिस्सा पानी से बना हुआ है, और गर्म पानी, कोसा पानी। जैसे मैंने फूड इम्यूनिटी में बताया आपको कि खाने के बाद यदि आप 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो आपका फूड इम्यूनिटी बनती है, आपका खाना अच्छी तरह हजम होता है। उसी तरह यदि आप लेटरिन से पहले 4 गिलास पानी पीते हैं तो नेचर में बोला जाता है कब्ज रोगों की नानी और गैस रोगों की माँ। डॉक्टर कहे हाँ, रोगी कहे ना। वो कहता मुझे तो गैस है नहीं है, मुझे तो कब्ज होती नहीं है। अब कब्ज 120 तरह की है। ये एक ऐसा विषय है जो सारी दुनिया के रोगों को तोड़ सकता है। इसको कभी हम आने वाले फ्यूचर में सिर्फ कब्ज को ही लेंगे, क्योंकि ये विषय इतने बड़ा है, होलिस्टिक परव्यू इतना बड़ा है। यदि मैं एक विषय को पकड़ता हूँ तो उसमें ही मुझे घंटों लग जाते हैं, और यही कारण है कि हमें तो 1 घंटा दिया जाता है तो हम पीछे रह जाते हैं, हम लंबी रेस के घोड़े हैं। उसी तरह से कम एक्सरसाइज तो ना छोड़िए, हो सके तो 10 मिनट एड़ियों के बाहर जरूर चलना चाहिए। कभी भी, किसी भी टाइम, कहाँ पे भी, सोने से पहले, खाने से पहले, ये आपके घर में फर्श के ऊपर एड़ियों पे चलना है आपने। इसकी भी एक हमने वीडियो बनाई है, वो आपको दिखाते हैं कि इसमें आप एड़ियों के बाहर कैसे चलना चाहिए। तो इसमें आपकी ये वीडियो है, ये थोड़ा देख लीजिए, और इसमें मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा क्योंकि इसमें और वीडियो नहीं है। आप क्यों सर चलेंगे, यही है। ये देख लीजिए आप, इसमें आपको देखा है अभी, जहां मर्जी चलिए आप, दिन में 10 मिनट, ये आपको इम्यून करता है। माना जाता है कि एड़ियों के अंदर 72,000 नाड़ियां, तो 72,000 नाड़ियों से आप तो अब आप एड़ियों के बाहर चलेंगे तो 10 मिनट आप इसमें, अब माना जाता है कि ये एक योग का, आपको मैंने ये योग का अल्टरनेट आपको बताया है कि अगर आप 10 मिनट करते हैं तो ये 3 घंटे, 3.5 घंटे की योग के बराबर है। क्योंकि बेसिकली योग, एक्सरसाइज, जिम, जहां भी जाके आप नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं, और एडी में 72,000 नाड़ियों का कंट्रोल है। आप टेक्निकली या स्मार्टफुली, इसको कहते हैं स्मार्ट एक्सरसाइज, तो आप अपने आप को स्मार्ट कीजिए और टाइम भी बचाइए। 10 मिनट एडीओ पे चलने से आप इम्यून होंगे। जो 5 तरह की इम्यूनिटी मैंने अभी तक बताई हैं आपको, 5 टाइप ऑफ इम्यूनिटी कैन बी कवर्ड अंडर ओनली एडीओ पे चलना है। इसके अलावा आप जो है ना, मैं आपको एक बहुत स्मार्ट एक्सरसाइज और बताने जा रहा हूँ, जिसमें तौलिए से आपको नहाते वक्त अपने आप को इम्यून कर लेना। तो तौलिए में क्या करना आपने, आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं जो आप अपने बाथरूम में भी अपनी इम्यूनिटी को उठाने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपने अपने टॉवल का उपयोग विभिन्न प्रकार से करना। टॉवल एक बहुत अच्छी मसाज का काम दे सकता है। हमने यहाँ पर ग्रिप के लिए थोड़ा सा नॉर्मल टॉवल लिया है, पर आप अपना कोई भी टॉवल जो भी आप घर में यूज़ करते हैं उसका उपयोग करिए। तो सबसे पहले आप नहाने के बाद जब टॉवल से पानी साफ करने के बाद उसको अपनी गर्दन पे इस तरह से रखिए। मैं आपको बाहर की ये भी सिचुएशन दिखाता हूँ, और इसी को बस यहाँ से ऐसे आप रगड़िए खूब। तो पहले सर्वाइकल एरिया में रगड़िए,
इससे यहाँ पे रगड़न से आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। इसी तरह आप मेडुला पे आप रखने के बाद मेडुला मसाज, दोनों कानों की मसाज अच्छी तरह कर सकते हो। तो ये उसके बाद आप ये इसको दोनों कंधों के बीच में ये लगा करके ऐसे आप पढ़िए, और इसको पकड़ने के बाद ये ऐसे ये ऊपर नीचे इसको दोहराया जा सकता है। इसी तरह से आप कुर्सी वगैरह का सहारा लेकर के इसको ऐसे पकड़ो, और ये घुटने वगैरह के रोगियों के लिए अच्छी तरह से रगड़िए। उसके बाद ये तो आप टॉवल के द्वारा अपने स्वास्थ्य की खुद रक्षा कर सकते हो। और आजकल ये लुंगी डांस चल रहा है, तो लुंगी डांस का भी आप अच्छी तरह से उपयोग करके मसाज दे सकते हैं। इस तरह से आप अब अपने पेट को भी मसाज कर सकते हैं, ऐसे पकड़ बना के। ये आपको बताने के लिए मुझे कपड़ों में करना पड़ रहा है, और बाथरूम में आप इसको बहुत अच्छी तरह टॉवल। इस प्रकार आप अपनी बॉडी को इम्यून कर सकते हैं, चाहे आप बाथरूम में हैं, चाहे आप बाहर घूमने के लिए गए हैं, चाहे आप और नहीं कुछ भी होता आपसे। मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और नहीं कुछ भी होता तो कम से कम 10, 20, 50 बार अच्छी तरह से ताड़ियां मारिए, और उसी तरह से अपने एक चप्पल लेकर के अपने पाँव को इस तरह से पीटिए। इसको हम टैपिंग भी बोलते हैं। तो अपने पाँव के नीचे जब आप हर एक जगह चप्पल मारते हैं या कोई चीज़, थोड़ा हल्का सा डंडा ले लेते हैं, आप बेलन का भी यूज कर सकते हैं, तो उससे आप अपने आप को इम्यून कर सकते हैं। क्योंकि हमारे परमात्मा ने, देखिए, आपका हाथ जगतनाथ, आपको परमात्मा ने अपने आप को इम्यून करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ये जो हाथ दिए गए हैं, ये आपके लिए बहुत बड़े डॉक्टर का काम कर सकते हैं। यदि आप इससे 12 तरह की तालियां होती हैं, ये फिर वो वही आ जाती है कि विषय, अनेक विषय हैं। अब मैंने 12 तरह की ताली डेवलप करी है कि जिससे आप ताली मार करके ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसी तरह से अपने आप को डी स्ट्रेस भी कर सकते हैं आप। और मेडिटेशन, ध्यान साधना, यदि आप इच्छुक हैं, चलते हैं इस विषय पे भी, कभी मेरी एक पूरी बुक ही है ध्यान और मेडिटेशन पे, तो वो भी। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ कि मैंने शायद आज या कल में आपको अपनी किताबों के बारे में लिंक्स भेजे हैं, वो भी एक बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं। यदि आप नेट के द्वारा किताबें खरीदते हैं, तो जितने विषय हम चूज कर रहे हैं, तो एक एक किताब में हमारा पूरा पूरा मतलब ये रास्ता है, वेद का नॉलेज है और सिंप्लीफाइड किया गया है। आप किताबें खरीद सकते हैं। अगले लेक्चर में आप अपने सुजेशन दे सकते हैं कि आप किस तरह का लेक्चर सुनना चाहते हैं। तो हम उस तरह से अपने आप को कोई भी विषय, दुनिया का कोई भी विषय हो, हेल्थ का हो, वेल्थ का हो, क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेगमेंट लेके चले। इसमें हमें मनुष्य का माइंड, बॉडी एंड सोल का कोई भी विषय है, उस पे हमें काम करना है और उसको हमें टच करना है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब हम बोलते हैं तो उसमें अध्यात्म भी आता है, उसी में साइंस भी आती है। तो ये सब एक मिक्सअप विषय है जिसको हम इंटीग्रेटेड फील्ड ऑफ मेडिसिन बोलते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए मैं सूचना भी दूं कि हमारी इंटीग्रेटेड मेडिसिन काउंसिल जो है वो सेंटर में रजिस्टर्ड हो गई है। हम उसमें भी आगे काम करना चाहे हैं, वो बहुत बड़ा काम हो सकता है। उसी तरह से
पर यहाँ पे मैं वार्निंग आपको भी देना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में अगर कुछ अच्छा छोड़ सकते तो स्मोकिंग छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए, जो भी एडिक्टिव चीज़ें ये सारी आपको डी इम्यून करती है, आपकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। समाज में बोला जाता है कि दारू पीने से कीड़े मर जाते हैं, ये एक दुर्भावनाएं हैं। आप देख ही रहे हैं कि ड्रग्स का क्या हाल है, किस तरह से हमारे देश को इन्होंने वो कर दिया है। और इसके अलावा हमारे पास एक बहुत बड़ी दवाई है जिसको मैं अवॉइड कर गया, इसके ऊपर भी पूरा का पूरा लेक्चर हो सकता है। ये पंच तुलसी है। पंच तुलसी का तेल अगर आपको कहीं से मिल जाता है, उसकी एक ड्रॉप आप अपने नाक में डाल लीजिए, आप इम्यून हो जाएंगे उसी टाइम 10 मिनट के अंदर। अगर आपके पड़ोस में कहीं आसपास कोई ऐसा रोगी है जो कोरोना पीड़ित हो चुका है, हम कर चुके हैं ऐसे केसेस 5,000 से ज्यादा हो चुके हैं, और फोन के ऊपर ही मैंने कईयों को सुजेशन दिए तो वो ठीक भी हो गए हैं। उनकी रिपोर्टें आप देखना चाहेंगे हम दिखा सकते हैं, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुए हैं। सारा का सारा परिवार भी एडमिट कर दिया गया था, परंतु मैंने सुजेशन किया, उन्होंने पूछा, 2 दिन के अंदर नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। और हमारे यहाँ क्लिनिक में लोग आते हैं, जब थोड़े बहुत सिम्टम दिखते हैं हम 10 मिनट में नाक में डालते हैं, कान में डालते हैं। अब देखिए इसका कारण है कि नाक और कान में हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं। दवाई तो वैसे ही यूज होती है, इसको तो पिया जाता है, बोला जाता है तुलसी बूस्टर है, परंतु हमने इसको फास्ट इफेक्ट देने के लिए तत्व के साथ यूज किया है। तत्व ही सर्वोपरि है। जिस तरह से बाहरी इन्वायरमेंट में ग्रह सर्वोपरि है, उसी तरह से आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में यानी कि बॉडी के अंदर तत्वों की महत्वता है। ये 5 तत्वों का शरीर है, 5 तत्वों से ही बना हुआ है। ये एक ऐसी इम्यूनिटी बूस्टर तुलसी केवल ऐसी वो दी है, मैंने इस पे साइंटिफिक रिसर्च भी किया है। इसका प्रोटीन वैल्यूज जो है वो कोरोना का प्रोटीन वैल्यू मैक्सिमम जो मार करता है वो 4.6 से लेकर के 7.6 तक कोरोना की पीएच वैल्यू है। परंतु हमारी तुलसी की जो पीएच वैल्यू है वो 8 से लेकर 12 तक है। तो ये कोरोना को तुरंत तोड़ देती है, तुरंत मार देती है, उसके प्रोटीन को तुरंत खत्म कर देती है। ये साइंटिफिकली हमने इवन पीजीआई की लैब में इसको टेस्ट किया है। ठीक है कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा क्योंकि कोरोना बीमारी नहीं है, ये तो बनाई गई बीमारी है, ये तो बिजनेस है। तो हमें इन चीजों पर कोई ज्यादा गवर्नमेंट से या कहीं से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, परंतु ये काम करती है। आप कर सकते हो, कोई भी बंदा घर में रह के जिसके घर में तुलसी है और कुछ होम्योपैथी की दवाई साइलिसिया है, उसको जरूरत ही नहीं है किसी दवाई, दुनिया की किसी दवा की जरूरत नहीं। अगर आपके घर में तुलसी है तो मैं सजेशन करूंगा तुलसी का यूज करिए। दुनिया 1 साल के लिए आपको इम्यून कर देती है। 1 महीने में 1 दिन नाक में डालिए, हफ्ते में 1 दिन कान में डालिए। और जो शुगर पीड़ित हैं, जो कैंसर पीड़ित हैं, जो भी लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से रोज जूझ रहे हैं, खाने के बाद 1 बूंद गले में डालते ही आपके समस्त ग्लैंडुलर सिस्टम को, आपकी समस्त फिजियोलॉजी को, सारी एनाटॉमी में फैल जाती है और कैंसर सेल को ये बदलती है। हमने कैंसर सेल के ऊपर इसको डाला, इसने कैंसर सेल को ना ही तो मारा, केवल कैंसर सेल को हेल्दी सेल में कन्वर्ट कर दिया। इसने अपने देवता के गुण भी दिखाए। तो ये आप लोगों के पास होलिस्टिक सेंटर से जो जुड़े हुए हैं या हमारे से जो जुड़े, उनके लिए तो एक बहुत बड़ा वरदान है। आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास ये काली माता के रूप में हथियार है, जिसने खप्पर लेकर के उसका खून भी नहीं गिरने दिया था और सारे राक्षसों का नाश कर दिया था। उसी तरह से 108 गुण लिए, इम्यूनिटी लिए हुए ये तुलसी है। और जितने प्रोटीन कोरोना वायरस में हैं उनके सारे एंटीबॉडी इसमें हैं, A to Z। अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरी इसी स्लाइड में ये प्रोटीनों की वैल्यू, प्रोटीन का क्या गुण है और कैसे मारती है, सब है, आप इसमें देख सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको सिर्फ इतना सा ही
सजेशन करूँगा कि जहाँ भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, आप अपने आप को इम्यून रखने की कोशिश कीजिए। इम्यूनिटी के मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं। इसके अलावा अगर आप इसको इम्यूनिटी को ही डिफाइन करोगे, अगर इम्यूनिटी को डिफाइन करोगे तो हमने इसके 40 तरह के इसमें से डेफिशिएंसीज को कैसे मारना है, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है, अब इसको तत्वों के हिसाब से हमने आगे दिया है। जैसे ये जो पहला तत्व है, यहाँ इम्यूनिटी को हमने डिफाइन किया है IN, नहीं ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसके आगे आप देखें इम्यूनिटी कैसे काम करती है। एक हमने हरियाणा अप्रोच डेवलप की है जिसमें होम्योपैथी, आयुर्वेदा, रिक्की, योगा, अल्टरनेटिव, नेचुरोपैथी एंड एलोपैथी से कैसे आप इंटीग्रेटेड अप्रोच के माध्यम से किस तरह ठीक कर सकते हैं, ये सब आप लोगों को मैं भेज दूंगा। इसमें डिटेल में पढ़ लेना आप, क्योंकि इसको अगर मैं डिफाइन करने लगा ये मेरा 40 घंटे का प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जब आप देखेंगे तो इम्यूनिटी को हमने कैसे डिफाइन किया है, इसी में आपको इम्यूनिटी कैसे है मैं बता देता हूँ। व्यू इम्यूनिटी को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, देखिए आप ये इम्यूनिटी देखिए, लो फ्रीक्वेंसी म्यूजिक से आपका आकाश तत्व ठीक होता है, डीप ब्रीदिंग से आपका वायु तत्व ठीक होता है, और अर्थ जो है लिक्विड डाइट से ही ठीक हो जाता है। आप सिर्फ कुछ ना करो, आप सिर्फ जूसेस पे रहो तो यू कैन कोरोना को मार सकते हो आप। गर्म पानी से आपका जो है जल तत्व एक्टिवेट होता है, और जल तत्व की इम्यूनिटी आपको दिखाया है मैंने सर्कल में कि किस तरह से उसको कंट्रोल करती है वायु तत्व को। उसी तरह आपने देखा भी होगा जल और वायु का क्या मिश्रण है, आप देख ही रहे हैं कि वायु जल को उठा करके आपका चौमासा भी गया है कहाँ कहाँ फेंकती है, तो उसी तरह से ये कंट्रोल करता है। और उसके बाद अग्नि बात है, सन बात कीजिए, कम से कम सूर्य में आधा घंटा बैठो। इससे इजी क्या है, कपड़े निकालो, छत पे बैठो। तो इसी तरह से ये मोटिवेशनल है, डीप मेडिटेशन कीजिए, सुदर्शन क्रिया कीजिए, नाभि बैलेंस कीजिए। उसके अलावा कौन हील कीजिए, रक्त मोशन का मतलब मसाज कीजिए, अपने शरीर को तपाइए, हल्का हल्का इस पे मसाज कीजिए। उसी तरह मूवमेंट है, जो मूवमेंट करना है वो शिरोशासन से उल्टा, मतलब इससे जो है ना आपका रक्त जो है ना खूब चलेगा, दौड़ेगा, ईथर तत्व बॉडी में बढ़ेगा। ईथर क्या है, आपका स्पेस है। फिर उसके बाद जंपिंग कीजिए बच्चों की तरह, सिटअप कीजिए छोटे मोटे, ये ऐसे हम सिटअप हाफ सिटअप करते हैं, नाभि सेट हो जाती है। मॉर्निंग वाटर है, जैसे आपको बताया 4 गिलास पानी सुबह लेटरिन से पहले पीजिए, शर्त यही है लेटरिन से पहले। उसके बाद आपको दिन में, देखिए बहुत बड़ी आज से 6000 साल पहले की एडवाइजरी है वांग भट्ट द्वारा, रनिंग कीजिए। उसी तरह से अंडरस्टैंड, अब इसको अंडरस्टैंड कैसे करना है तत्वों में, कोरोना से डरिए मत, और अच्छी तरह से एयर लीजिए, सांस लीजिए। तो इनको आपको भेज दिया जाएगा, और मैंने इस पे एक कविता भी लिखी है। 5 प्रकार हैं ये जो आपको मैंने सारी की सारी इम्यूनिटी बताई है, इनको कैसे किस तरह से ठीक भी किया जा सकता है, उसमें इलाज भी बताया। तो इन शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि आप इसका बेनिफिट लीजिए, और इसका PDF मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा डॉक्टर रुचिका से कि वो इसका PDF आपको भेज दे, ताकि आप लोगों को जो है ये जो लेक्चर है ये मिले, और आप अपने आसपास भी ठीक कीजिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। तो इन सब के लिए आपका धन्यवाद। और विषय बहुत बड़ा है, विषय तो अनंत के हैं, पर क्या करें, समय की बाध्यता हम पर भी है, आप पर भी है। और मैं चाहूँगा आगे आप जुड़िए, कोई नया विषय, आप कोई भी विषय चुन सकते हैं और हमें भेज सकते हैं।